یہ دن خدا نے مقرر کیا ہے، میں شادمان ہوں اور خوش ہوں۔ ہاللیلویا۔ خوشخبری کی ایک اور قسط میں خیر مقدم، میں اینڈریو کولبی۔ اگر آپ اپنے عقیدے کو پختہ رکھنا چاہتے ہیں، یقیناً آپ صحیح جگہ پر ہیں۔ مبشر بونکے کا پیغام آپ کو قائل کر دے گا کہ پرآسائش جگہ سے باہر نکلیں اور خدا پر ایمان رکھیں جو آپ کی امید سے زیادہ بخشے گا، شاید اس سے بھی زیادہ جو آپ نے سوچ رکھا ہو۔ اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اسکرین کے نیچے ویب سائٹ کی تفصیلات کی آگاہی لیں۔ ہم دعا میں مستعد ہیں، ہم جانتے ہیں بلا شبہ دعا کام کرتی ہے۔ ہمیں لکھیں تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کریں۔ مرکس 11:24 میں کلام پاک میں فرمایا گیا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ مل جائے گا۔ یہ جاننے کے بعد اپنی دعا کی درخواست ہمیں بھیجنے میں ذرا گریز نہ کریں۔ آپ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں ڈینیل کولینڈا سے۔ وہ آپ کو مثال دیں گے کہ کیا ہوتا ہے جب کوئی خدا پر بھروسہ اور ایمان رکھتا ہے۔ غور فرمائیں۔ میں 10 برس کی تھی جب میری بینائی ختم ہونے لگی۔ میری گردن میں بہت درد تھا اور میری آنکھوں میں بہت تکلیف تھی۔ میں بہت سے ڈاکٹروں کو ملی کیونکہ مجھے کچھ دیکھنے کے لیے اپنی پلکوں کو پکڑ کر کھولنا پڑتا تھا۔ اس کے باوجود بھی میری نظر دھندلی ہو چکی تھی۔ میری بیماری نے مجھے خود اعتمادی سے بھر دیا۔ میں کسی کی جانب دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ بہت تکلیف دہ تھا کیونکہ روشنی میری آنکھوں کو تکلیف دیتی تھی۔ میں اتوار کو ایک عبادت میں گئی اور مبلغ بہت اچھی تبلیغ کر رہا تھا۔ میں نہایت پرجوش تھی۔ میں کھڑی ہو گئی اور تالیاں بجانے لگی۔ مجھے احساس نہیں تھا کہ میری عینک میرے ہاتھوں میں تھی اور وہ مجھ سے چھوٹ کر ٹوٹ گئی۔ اس لمحے سے قبل جب بھی میری عینک گری مجھے بہت برا محسوس ہوتا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھے روزمرہ کے استعمال کے لیے عینک کی ضرورت ہے۔ وہ میری زندگی تھی۔ تاہم اس بار جب مجھے احساس ہوا کہ میری عینک ٹوٹ چکی ہے، میں خوف زدہ نہ ہوئی۔ میرے دل میں ایک حیرت انگیز سکون تھا۔ میں بے خوف تھی۔ میں نے خدا سے کہا کہ میں اس کے لیے تالیاں بجا رہی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میری عینک ٹوٹنے کی کوئی وجہ ہوگی۔ ڈاکٹر نے میری نئی عینک بنانے کے لیے میری دوبارہ جانچ کی، لیکن کانفرنس میں نے اپنی شفا یابی کے لیے دعا کی تھی۔ میں جانتی تھی کہ کوئی مبلغ مجھے یا کسی اور کو شفا یاب نہیں کر سکتا، صرف یسوع ہی مجھے شفا دے گا۔ جب میں نے ایمان رکھتے ہوئے دعا مانگی کہ یسوع مجھے شفا دے گا تو مجھے مکمل شفا ملی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی اور مجھے احساس ہوا کہ میں دیکھ سکتی ہوں۔ میں خوشی سے بھر گئی اور میں اپنے ڈاکٹر کو اطلاع کرنے گئی کہ خدا نے کیا کیا ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ میری بینائی 100% بحال ہو چکی ہے، وہ حیران رہ گیا۔ اس نے خود صلیبی تحریک میں آنے کا ارادہ کیا۔ اب آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ رکیے تھوڑا صبر کیجیے۔ انہیں 15 سال سے دقت تھی۔ اس خوفناک دقت کی وجہ سے یہ 15 سال سے عینک پہنے ہوئے تھی۔ انہیں سب دھندلا دکھائی دیتا تھا۔ جمعرات کو جب یہ یہاں آئی تو انہیں شفا مل گئی۔ اور اب کیا آپ کو عینک کی ضرورت نہیں ہے؟ یہاں ان کے نتائج ہیں۔ کیا یہ ڈاکٹر کا دیا ہوا پرچہ ہے؟ آج میں نے جانچ کرائی، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میں دیکھ سکتی ہوں یا نہیں۔ کیا کوئی ہے جو اس رپورٹ کو پڑھ سکتا ہے؟ ہمارے پاس یہاں ایک ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر آپ اسے پڑھ سکتے ہیں؟ abaganga ntitwandika neza cyane avuga ngo ijisho ry'iburyo 10 sur 10 vision 10 sur 10 nuvuga ngo abona neza cyane normal. Ijisho ry'ibubamfu nuko nyene 10 ku 10 nuvuga ngo abona neza cyane normal. Hallelujah. اس وقت جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی اور محسوس کیا کہ میں دیکھ سکتی ہوں، میں خوشی سے مغلوب ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ یکایک یہ دنیا میری ہو چکی ہے۔
मैं इस बात की गवाही देने के लिए पुरजोश हूँ कि खुदा ने मेरे लिए क्या किया। मुझे यकीन है कि मेरी कहानी उन तमाम लोगों तक पहुँचेगी जो शागिर्द थॉमस की तरह है, जो देख के बगैर यकीन नहीं लाते। मेरी कहानी उन्हें दिखाएगी कि खुदा वाकई ही शिफा देता है। मैं तमाम जिंदगी खुदा की अजमत की गवाही दूंगी। ये गवाही उन वजूहात में से एक है जिसकी वजह से यीशु कुर्बान हुआ। उसने हमारी बीमारियां, दुख उठा लिए और हमारी तमाम जद्दोजहद। आप मुझे दुनिया की दौलत दे सकते हैं, खूबसूरत घर, गाड़ियां, लिबास, शान और शौकत, लेकिन यीशु की जगह नहीं ले सकते। मैं सोने या चांदी से बढ़कर यीशु को चाहता हूँ। पेश हैं मुबश्शिर बॉन्के जो पैगाम नशर करेंगे। आइए देखें। सलाम, मैं मुबश्शिर रेनहार्ड बॉन्के हूँ और ये मेरे लिए एजाज और सादतमंदी की बात है कि मैं आपको खुदा का कलाम सुना सकूं। मेरा माखज़ है किताब मुकद्दस। मुझे आज भी याद है, एक नौजवान मेरे पास आया और किताब मुकद्दस के बारे में यूं कहने लगा, मुझे आपकी किताब पसंद नहीं। मैंने पूछा, अरे क्यों? वो बोला, ये 2000 साल कदीमी है। मैं 17 साल का हूँ। मैं इस जमाने का हूँ, इस जमाने में रहता हूँ। मैं नौजवान हूँ। मैं इतनी कदीमी किताब के असूलों के मुताबिक नहीं जीना चाहता हूँ। खैर, मैंने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। ये दिन के वस्त का समय था। मैंने कहा, है नौजवान, सूरज को देखो। सूरज की उम्र 2000 साल से जायद है। फिर भी मैंने उसे ये कहते हुए कभी नहीं सुना, मैं ठंडा हूं। आखिर सूरज भी तो कदीमी है। जी हाँ, सूरज बहुत कदीमी है, लेकिन बहुत गर्म है। और किताब मुकद्दस बहुत कदीमी है, लेकिन बहुत ताकतवर है। मेरे ख्याल में ये खुदा की किताब मुकद्दस की हक्कानियत को वाज़े करता है। जी हाँ, सुनिए, वक्त की कोई कैद नहीं है। हमारे खुदा का कोई सानी नहीं है। ये खुदा का कलाम है और मैं पढ़ूंगा रसूलों के अमाल 26 बाब के 18 आयत से आपको सियाको सबाक देने के लिए। खुदा यहाँ फरमाता है, वो यहाँ पौलुस रसूल से कलाम कर रहा है। मैं कुछ देर बाद मजीद सियाको सबाक की वजाहत करूंगा। उसने कहा, तू उनकी आंखें खोल दे ताकि वो तारीकी से रोशनी की तरफ रुजू कर सकें और खुदा की ताकत से। बल्कि मैं इसे दोबारा पढ़ना चाहूंगा, तू उनकी आंखें खोल दे ताकि वो तारीकी से रोशनी की तरफ रुजू कर सकें और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ, ताकि उन्हें गुनाहों से मुआफी मिल सके। आगे सुनिए, मुकद्दसों में शरीक होकर मिरास पाएं मुझ पर ईमान लाने के बाइस। लेकिन ये थोड़ा पेचीदा सा लगता है। खैर, आप बराए मेहरबानी मेरी बात सुने, आपको बरकत मिलेगी। यहाँ खुदावंद पौलुस रसूल से यूं फरमाता है, उसे खुशखबरी की तबलीग करनी चाहिए ताकि लोग तारीकी से नूर की जानिब रुजू कर सकें। और यही मेरे पैगाम का उन्वान है, रुजू करना। मैंने किसी को कहते सुना, रुजू या आतिश ज़दा, लेकिन मेरा ये पैगाम नहीं है। मेरा मानना है, आतिश की जानिब रुजू नहीं, हम निजात की जानिब रुजू करें, तारीकी से रोशनी में रुजू करें। मैं आपको एक निहायत छोटी मिसाल देता हूँ। मैं जर्मनी में तबलीग कर रहा था। इजलास के इख्तिताम पर जब मैंने लोगों को बुलाया तो बहुत से लोग यीशु को कबूल करने आगे आए।
मैं पुरजोश था। जब मैं तख्तगाह से उतर रहा था, एक बुजुर्ग खातून मेरे पास आई। वो मेरी जानिब बढ़ी तो मैंने देखा वो वाकई दुखी थीं। आप दुखी लोगों को देखकर समझ सकते हैं। वो मेरी तरफ आई और कहने लगी, मुबल्लिग, मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसा बयान नहीं सुना। उसने कहा, मेरी जिंदगी दुख भरी है। मैंने कहा, जी मैं समझ सकता हूं। उसने कहा, मुझे बताने दीजिए, मेरे वालिदैन मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे। मैं वाकई ही माँ बाप के प्यार को नहीं जानती हूँ। बड़े होते ही मैं मोहब्बत में डूबकर घर से भाग गई। जल्दी मेरी शादी हो गई। मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया। जब मेरी बेटियां जवान हुई तो मेरे ही खिलाफ हो गईं। मेरी जिंदगी में सब कुछ खराब हो गया। उसने कहा, मैं इसे बयान नहीं कर सकती। मैं महज इतना कहूंगी कि हर सुबह जब मैं बिस्तर से उठती हूँ, अपना पांव तारीकी में रखती हूँ। मैं अपने पैर तारीकी में रखती हूँ और सारा दिन तारीकी में चलती हूँ। तारीकी, हर वक्त तारीकी। उसी वक्त रूहुल कुदस ने मेरे दिल को मस किया। मैंने कुछ ऐसा देखा जो इससे कबल कभी ना देखा था। मैंने कहा, खातून, अभी आपने कहा हर सुबह जब आप बेदार होती हैं, अपने बिस्तर से कदम उतारती हैं तो तारीकी में ही कदम रखती हैं, क्या ये सच नहीं? वो बोली, जी हाँ। अब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यही सच है। मैंने कहा, खुदा ने मुझे दिखाया कि आप क्या कर सकती हैं इस बुराई से बाहर निकलने के लिए। अच्छा, वो कैसे? मैंने कहा, मैं इसकी वजाहत करता हूं। अगर चमकता सूरज आपके पीछे है तो जाहिर सी बात है कि अब आपका साया आपके ठीक सामने होगा। और जब आप चमकते सूरज की बिलमुकाबिल सिमत में चलोगे तो हर बार जब आप कदम रखते हो, तारीकी में ही कदम रखते हो, क्योंकि आप अपने ही साये में चलते हो। आप चलते हो तारीकी में। मोहतरमा, आप तारीकी से भाग नहीं सकती। आप जितना तेज दौड़ेंगी उतनी ही तेजी से आपका साया आपके पीछे भागेगा। आप इससे भाग नहीं सकती। इसलिए किताब मुकद्दस कभी नहीं कहती कि आप तारीकी से भागो। खुदा ने पौलुस रसूल से क्या फरमाया? उसने कहा, रुजू करो। आपको रुजू करना चाहिए तारीकी से नजात के फरजंद की जानिब, रोशनी जहां की जानिब, यीशु मसीह की जानिब। क्या आप मेरी बात समझें? अगर आप तारीकी में घिरे हुए चल रहे हैं, अगर आप गम या उदासी में चल रहे हैं, अगर आप अपने मातम के घड़े से बाहर नहीं निकल सकते, वो सियाह बादल आप पर आमादा हैं, तो यीशु पहले ही इस मंजर आम पर है और वो मेरे जरिए आपसे कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आप रुजू करें। और फिर तारीकी रोशनी में मुबद्दल हो जाएगी। ताज्जुब की बात है, कितने ताज्जुब की बात है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपकी मदद करे, तो मैं कहूंगा, अगर आप ख्वाहिशमंद हैं कि आप अपनी जिंदगी की तारीकी और गुलामी से निकल जाएं, इस मुंशियाती लत से निकल जाएं, इफ्यून की लत से, अद्वियात की लत से बाहर निकल जाएं,
तो आपको यीशु की जानिब रुजू करना चाहिए, बिल्कुल अभी। क्या आपको पता है रुजू कैसे करते हैं? रोमियो 10 बाब यूं फरमाता है, यहाँ एक कुंजी है, जो कोई भी कलाम फरमाता है, खुदावंद का नाम लेगा, निजात पाएगा। आहा, अब मैं समझ गई। मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। मुझे खुदावंद का नाम पुकारना होगा। तो उस खुदावंद का नाम क्या है? यीशु मसीह। क्योंकि हमारा खुदा बाप उन दुआओं को सुनता है जो यीशु मसीह के नाम में मांगी जाती हैं। तो आप ये कैसे करते हैं? यहां मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। बस ठहर जाइए और यीशु पर अपनी नजर लगाइए, फिर जमीन से आसमान तक पुकारे, यीशु मेरी जान की हिफाजत फरमाइए। उसी लम्हा आप रुजू कर रहे हैं, यीशु मेरी जान बचाइए। बस इतना ही, आप रुजू कर गए। आप यकायक 180 जाविये पर रुजू हो गए हैं और आपकी निजात का फर्जंद, हमारे मुबारक खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा आप पर रोशन होगा, मुकम्मल तौर पर अपने चेहरे से आपके चेहरे पर। और उसके बाद उंगली उठाने जितनी कोशिश के बगैर आप रुजू कर चुके होंगे तारीकी से नूर रोशनी की जानिब। आप मौत, अजाब, तारीकी और असीरी की गिरफ्त से पूरी तरह बाहर हो गए होंगे। तो अब आपकी तारीकी कहाँ है? जब आप रास्तबाजी और निजात के फर्जंद यीशु मसीह की जानिब घूम जाएंगे, तब आपका साया आपके पीछे होगा। मुझसे पीछे हट शैतान। अगर खुदा मेरी तरफ है, आपकी तरफ है, हमारी तरफ है, तो कौन हमारा मुखालिफ है? ओह, आज मैं दिले ख्वाहिश करता हूँ कि रूहुल कुद्दूस का ये कलाम आज आपके दिल में उतर जाए और आप इस जानिब रुजू होते जाएं। यीशु को आपसे मोहब्बत है। आपको उसे तलाशने की जरूरत नहीं, उसने आपको ढूंढ लिया है। अब वो आपसे कलाम करता है मुझ खादिम के जरिए से। मैं आपसे कहना चाहूंगा, उसके बाजू खुले हुए हैं, उसके नाम को पुकारो ताकि वो आपको बचा ले। क्योंकि जब आप उससे अपनी हिफाजत मांगोगे तो कुछ और भी होगा। रूहुल कुद्दूस आप में मुतहर्रिक हो जाएगा और यीशु ने आपके और मेरे लिए जो कुछ सलीब पर किया वो उसे लेगा, ताकि हमारी निजात महफूज हो सके। रूहुल कुद्दूस जो कुछ भी यीशु ने आपके लिए सलीब पर किया, यानी आपकी निजात, आपके तजर्बे में, आपके दिल में मुंतकिल कर दी है। सब कुफ्र जाता रहा है। आप वो कह सकते हैं जो किताब मुकद्दस की अव्वल कदीम तरीन किताब में अयूब ने फरमाया, बल्कि उसने कहा, मुझे पता है मेरा निजात दहिंदा जिंदा है। क्या आप अभी रुजू करना चाहेंगे? अगर ऐसा है तो आपको उस शानदार निजात दहिंदा की जानिब ले जाना मेरे लिए एजाज होगा। बराए मेहरबानी यीशु को हाँ कहें। क्या आप कहेंगे? बुलंद आवाज में कहिए, मैं यीशु को हाँ कहता हूं। कहिए, अब मैं यीशु के नाम को पुकारूंगा। मैं अब रुजू करूंगा और कभी इस तारीकी में वापस नहीं लौटूंगा। मैं अब तारीकी में नहीं चलूंगा। हम चल रहे हैं
खुदा के नूर में हम हर रोज कदम बढ़ाएंगे। जब आप बिस्तर से उठेंगे तो आप उस रोशनी में कदम रखेंगे। क्या आप समझे? आपके कदम रोशनी में होंगे। यही वो पेशकश है जो यीशु आपको देता है। आइए रुजू करें, उससे इल्तिजा करें। आइए मेरे साथ ये दुआ दोहराएं। कहें, खुदावंद यीशु, मैंने आपका कलाम सुना है। आपने मुझे बुलाया और निकाला मुसीबतों से जलाल की जानिब और तारीकी से रोशनी की जानिब, बीमारियों से शिफा की जानिब और लानत से बरकत की जानिब। ऐ यीशु, मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूँ कि मेरी जान बचाइए, मेरी जिंदगी बचाइए। अकीदे से मैं ईमान और हासिल करता हूँ, रुजू करता हूँ खुदा के नूर के जानिब। मेरे पीछे चली गई मेरी तारीकी, आपका जलाल अब मेरे सामने है। मैं चल रहा हूँ खुदा की रोशनी में, यीशु के नाम में। शुक्रिया खुदावंद उन तमाम दोस्तों के लिए जिन्होंने अभी मेरे साथ दुआ की। खुदावंद, दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ कि आप इन तमाम जगहों पर मौजूद हैं। तमाम अफ्रीका में और अमेरिका में, भारत में तू मौजूद है, पाकिस्तान, चीन, हर मुल्क में। ये मेरी दुआ है कि आप लोगों को तारीकी से निकाल ले और उनके पांव अपनी शानदार रोशनी में रख दें। यीशु के नाम में मैं बीमारियों की मुखालफत करता हूँ, तमाम असीरी की मुखालफत करता हूँ, तमाम मजलूमों के लिए दुआ करता हूँ। यीशु आपके साथ है, जैसे वो शेरों की मान में दानियल के साथ था। खौफ ना खाओ, यीशु मसीह के नाम में। आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं मुबश्शिर रेनहार्ड बांके हूँ। आप बराए मेहरबानी मेरे फेसबुक पर जाएं। मेरे पास आपको कलाम नशर करने के लिए बहुत कुछ है। वहाँ खुदा की खिदमत कैसे करें इसके लिए तालीमात मौजूद है और खुदा के कलाम से इंकिशाफात भी हैं। अच्छी किताबें हैं, आपको बरकत मिलेगी। मेरी दुआ है कि आप सब मेरी मिस्ल खुदा के मसह शुदा मुबल्लिग और खादिम बन जाएं, यीशु के नाम में। लिहाजा मैं एक नए कलाम के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। जल्द मिलेंगे। खुदा हाफिज। आइंदा वक्त तक के लिए खुशामदीद। गुड न्यूज देखने के लिए हम आपके मशकूर हैं। हमारे नए सिलसिलेवार गॉड टीवी उर्दू पर खसूसी है। गुड न्यूज यानी जिस खबर का हम इस्तराक करते हैं वो तभी अच्छी है जब जिंदगी में तब्दीली लाए। यीशु के शागिर्द होने के नाते, उसके मुबल्लिग के नाते हमें दुनिया को खुदा की अजीम मोहब्बत के बारे में बताना चाहिए। उसकी मोहब्बत हिफाजत करती है और नजात देती है। उसकी मोहब्बत इस रूए जमीन की तमाम हुकूमतों से आलातर है। यही खुशखबरी है और इसकी तबलीग करनी चाहिए। खुशखबरी नशर करने में मदद करें और आप गॉड टीवी उर्दू नशरियात की हिमायत करें। जानते हैं गॉड टीवी उर्दू दुनिया भर में 28 करोड़ से ज्यादा घरों में नशर होता है, हत्ता कि ममनू ममालिक में भी। हमें नशरियात को बढ़ाने की जरूरत है ताकि हर कौम और हर घर यीशु का पैगाम सुन सके। बराए मेहरबानी आपसे दरख्वास्त है कि god.tv/good news पर जाएं और पैगाम को हर फर्द बशर तक पहुंचाएं। शुक्रिया आलमी मीडिया मिशन का हिस्सा बनने के लिए। शिरकत के लिए शुक्रगुजार हैं। इस कलाम ने आपकी हौसला अफजाई की है। ना सिर्फ हौसला अफजाई बल्कि आपको जिम्मा दिया है कि खुदा पर गहराई से ईमान लाएं। अपनी जिंदगी की खातिर हमेशा दूसरी अजमत की गवाही सुनकर मुतमईन न हों जो खुदा ने दूसरे लोगों की जिंदगी में किया है। ईमान के साथ कदम बढ़ाएं तो यीशु यूं जाहिर होंगे कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते।
एक बार फिर स्क्रीन के नीचे दी गई तफसीलात को लिख लें। हम आपको जानना चाहते हैं और ये भी कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं और आपकी खिदमत में भी। हमें खुदा में अपने ख़ानदान के बारे में बताएं और उसकी रहनुमाई के मुतल्लिक जिसमें आपको सबसे मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा हो। हमारा आज का वक्त ख़त्म होता है, लेकिन हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। In the name of Jesus, I break the curses of the devil. In the name of Jesus, I break the power of every disease. That at the name of Jesus Christ, every knee should bow and every tongue should confess of things in heaven, on earth, and under the earth, that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Say amen. I heard she had sickle cell. Yeah, sickle cell anemia. So she couldn't do this before. No more pain. No more pain. No more, you can feel it. I only have one desire. I want hell empty and heaven full. I speak to every crippled leg, and I command every crippled leg to receive strength right now in the name of Jesus. He turns darkness into light. He turns sin into salvation. He turns bondage into freedom. He takes away addictions, and he changes us from the inside out.